क्या केंद्र सरकार अब अमेरिका से दूध, दही, पनीर व विभिन्न प्रकार के अनाज खरीदेगी और देश के किसानों का भविष्य बर्बाद करेगी? क्या केंद्र सरकार जो ऑयल अभी रूस से खरीद रही है और रुपये में खरीद रही है या अन्य किसी करेंसी में खरीद रही है, वही ऑयल अब अमेरिका से खरीदेगी और डॉलर खर्च करेगी, जिससे कि रुपये की वैल्यू और ज़्यादा गिरेगी? दोस्तों, जब भी कोई बजट आता है या ट्रेड डील होती है तो सरकार उसे अपनी उपलब्धि बनाकर सेलिब्रेट करती है। दूसरी ओर विपक्ष उसमें खामियां निकालता है, उसके नुकसान गिनाने में लग जाता है। कोई भी यह बात नहीं करता इससे आम आदमी की जेब पे क्या प्रभाव हुआ, उसको क्या क्या फ़ायदे मिले या क्या क्या नुकसान मिले, ये बात बहुत दूर रह जाती है। आज हम इंडिया यूएस ट्रेड डील के बारे में विस्तार से समझेंगे एवं उसका विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, इंडिया यूएस ट्रेड डील की अनाउंसमेंट होती है डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट से, जो इस प्रकार है। इट वॉज ऑनर टू स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया दिस मॉर्निंग. He is one of the greatest friend and powerful and respected leader of his country. We spoke about many things, including trade and ending the war with Russia and Ukraine. He agreed to stop buying Russian oil and buy much from United States and potentially Venezuela. This will help end the war in Ukraine, which is taking place right now, with thousands of people dying each and every week. Out of friendship and respect for Prime Minister Modi, and as per his request effective immediately, we agreed to trade deal between the United States and India, whereby the United States will change it, reduce reciprocal tariff lower from 25% to 18%. This will likewise move forward to reduce their tariff and non-tariff barriers against the United States to zero. The Prime Minister also committed by American a much high level in addition to over $500 billion of US energy, technology, agriculture, coal and many other products. Our amazing relationship with India will even stronger going forward. Prime Minister Modi and I are took place to get things done, get something that cannot be said for most. Thank you for your attention to this matter. दोस्तों, इस ट्वीट में 3 पॉइंट ध्यान देने लायक है। एक तो इंडिया ने एग्री किया है ट्वीट के हिसाब से कि वो ऑयल रसिया की जगह यूएसए या वेनेजुला से खरीदेगा। दूसरा पॉइंट है कि जो टैरिफ यूएसए ने इंडिया पे लगा रखी थी वो 25% लगा रखी थी, उसको 18% किया है। तीसरा पॉइंट है इंडिया $500 बिलियन का यूएस एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोल और अदर प्रोडक्ट यूएसए से खरीदेगा। ट्रंप की पोस्ट के बाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हैं, वंडरफुल टू स्पीक विद माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप टुडे, डिलाइटेड दैट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स will now have a reduced tariff of 18%. Big thank to President Trump on behalf of 1.4 billion people of India for this wonderful announcement. When two large economic and the world's largest democracy work together, it benefits our peoples and unlock immense opportunity for mutually beneficial cooperation. President Trump's leadership is vital for global peace, stability, prosperity. India fully supports his efforts for peace. I look forward to working closely with him to take our partnership to unprecedented heights. दोस्तों, इसमें जैसे कि ट्रंप ने ट्वीट किया था रेट के बारे में, ऑयल परचेज करने के बारे में, या फिर $500 बिलियन का अमेरिका से व्यापार करने के बारे में, मोदी जी ने ऐसा कुछ भी ट्वीट में नहीं लिखा। तो मोदी जी ने जैसे धारा 370 हटने पर गृह मंत्री अमित शाह को आगे किया था, वैसे ही इस डील को करने वाले हमारे मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट किया है और मोदी जी ने उनको ही आगे किया है। हम उनका भी ट्वीट एक बार पढ़ लेते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एज वेल एज टू पीपल ऑफ इंडिया द यूनाइटेड स्टेट ऑन द लैंडमार्क ट्रेड एग्रीमेंट. This reflects the power of two like-minded, fair trading democracies working together for shared prosperity.
grateful to PM Narendra Modi ji and President Donald Trump for their visionary and decisive leadership and strong commitment to strengthen Indian-US ties. This unlocked the power of two large democracies working together for shared prosperity of their peoples. Both India and US are natural allies, and our partnership will co-create technology, co-develop solutions, and work together for peace, growth, and brighter future for India and US. This agreement unlocks unprecedented opportunity of farmers, MSME, entrepreneurs, and skilled workers to make in India for world, design in India for innovate in India for the world. It will help India get technology from the US. It is not just a trade deal, it is the historic turning point that will reshape India US relationship and accelerate our journey toward Viksit Bharat 2047. दोस्तों, पीयूष गोयल जी के ट्वीट में भी इस प्रकार की कोई भी बात नहीं है जैसे कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। दोस्तों, जहाँ तक बात है टैरिफ की, जो कि 25 से 18% हो गई है डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से, और विपक्ष भी जोर जोर से चिल्ला के बता रहा है कि ये 25 से 18% हो गई है, जबकि सच्चाई ये है कि ये 50% थी। 25% टैरिफ थी प्लस 25% पेनल्टी थी। ये टोटल 50% टैरिफ इंडिया पर थी, जो अब 18% हो गई है। क्या इससे इंडिया को फ़ायदा मिलेगा? हम देखते हैं यूएस की अदर कंट्रीज़ पे कितनी कितनी टैरिफ है, तो उसकी लिस्ट को हम चेक करेंगे तो देखेंगे चाइना पे 35 से 45%, यूरोपियन यूनियन पर 25 से 35%, मैक्सिको पर 20% से 30%, जापान पे 20 से 28%, साउथ कोरिया पे 20 to 28%, और अदर कंट्रीज़ पे भी इंडिया से ज़्यादा ही टैरिफ है। दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं ऑयल। विपक्ष 6 महीने पहले से बोल रहा है कि भारत रूस से रुपए में ऑयल नहीं खरीद रहा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने मना किया है। जबकि हम यदि आंकड़ों पे जाते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के आंकड़े देखते हैं कि भारत ने किस किस देश से कितना % तेल खरीदा है और किस करेंसी में खरीदा है, तो हम पाएंगे कि रूस से इंडियन रुपीज़ में टोटल ऑयल इंपोर्ट का 31 to 32% खरीदा है, और उसमें अलग अलग कंट्रीज़ भी है जैसे इराक हो गया, सऊदी अरब हो गया, और अमेरिका तो इसमें 5वें नंबर पे है। ऑयल के मामले में भी न तो पीयूष गोयल ने कुछ बोला है, न प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ बोला है, और डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर आप कितना ही विश्वास कर सकते हैं। उनकी हिस्ट्री रही है पलटने की, वो कभी भी अपनी बात पर कभी टिके ही नहीं। तो दोस्तों, अपने प्रधानमंत्री पे विश्वास कीजिए। तीसरा पॉइंट है एग्रीकल्चर। जैसे कि विपक्ष ने प्रमुख मुद्दा बना रखा है कि अब एग्रीकल्चर फील्ड को, डेयरी फील्ड को यूएस के लिए खोल दिया है, जिससे भारत के किसानों की आय में भारी कमी आएगी और उसे कम्पीट नहीं कर पाएगा। भारत की 60 से 70% आबादी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कृषि पर निर्भर करती है। यदि विपक्ष बोल रहा है कि कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोल दिया है, तो इसका प्रभाव इंडिया पे बहुत बुरा पड़ने वाला है। आगे हम समझते हैं कि प्रीवियस ईयर में कितने कृषि से संबंधित इंपोर्ट भारत में किए गए। दोस्तों, यदि हम प्रीवियस ईयर 2024-25 में देखेंगे तो आमंड्स मतलब बादाम, पल्सेस, फ्रेश फ्रूट्स और अन्य पदार्थों का, अन्य प्रोडक्ट्स का भी भारत में इंपोर्ट हुआ है, जो कि टोटल इंपोर्ट का 12 to 50% है यूएसए से। मुझे लगता है कि ये भी विपक्ष के दावे बिल्कुल गलत है, क्योंकि पीयूष गोयल बोलते हैं कि कृषि उपकरण एंड मशीनरी जो भारत में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए काम आए हैं, उसका इंपोर्ट करने के लिए बोल रहे हैं, जबकि विपक्ष बोल रहा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भारत में खरीदा जाएगा। यह दोनों की डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप कमेंट में बता सकते हैं। हमारा फाइनल पॉइंट आता है कि भारत यूएस से टोटल $500 बिलियन का इंपोर्ट करेगा। यदि देखा जाए भारत के लास्ट ईयर का इंपोर्ट, तो
$697.75 बिलियन डॉलर है। यदि ये बात सच हो कि $500 बिलियन का तो केवल यूएस से ही करेगा, और टोटल भारत का इंपोर्ट है 697.75 बिलियन, यह इम्पॉसिबल है। अभी फ़िलहाल जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में यदि इंपोर्ट देखा जाए तो इंडिया ने इंपोर्ट सबसे ज़्यादा किया है चीन से, 126.96 बिलियन डॉलर का। उसके बाद रूस, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसमें अमेरिका का नंबर 14 है, और उससे इंपोर्ट हुआ है 38.99 बिलियन डॉलर, अप्रोक्स 39 बिलियन डॉलर। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं 39 बिलियन डॉलर का व्यापार डायरेक्ट 500 बिलियन डॉलर हो जाए। क्या ये सच में पॉसिबल है? हम सबके लिए सोचने की बात है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।